Hello there, everybody. Welcome back. Welcome back. Today we're going to be watching and reacting to a video about Indian street food. Now, over here in the USA, we see a lot of Indian street food. Usually, videos pushed by grifters and by propaganda artists to paint the picture that India is a dirty place and their food is dirty and unhygienic and stuff like that. Me personally, I realize I can see beyond the veil. I can see when someone's putting on an act. I can see when, it's a propaganda video of some sort, either by, the opposition of some sort, Pakistan or whatever. I can see when, a a tourist goes to India and goes to like the poorest area, the dirtiest area, and purposely paints a narrative where this is everywhere in India, right? I can see beyond the veil. I can realize when those things are being pushed out. This video here is interesting to me because I want to see what it's like from a more Indian perspective, right? So the link to this particular video will be in the description down below. So India street food is going viral, but not for the right reasons. We see videos racking up millions of views that show Indian food as dirty, unhygienic, and absolutely unsafe to consume. Even the latest news reports speak of the same sad state of Indian street food. For instance, just last year in May, a 19-year-old died after consumed shawarma in Mumbai that gave him severe food poisoning. I mean, that's bad, but I mean, food poisoning can come from, high class restaurants too. A few months back, 97 kids fell sick after consuming pani puri in Madhya Pradesh. This is the state of India street food that we all love to eat, but is this really true? Question mark. Is Indian street food so unhygienic? To find the answers to these questions, I decided to play Hunger Games with my team members. We went to 3 different cities, Bengaluru, Delhi, and Kolkata, to taste and test 3 of the most famous street foods: shawarmas, momos? What is a momo? And puchkas? Is that how you pronounce it? I'm sure he'll say it in the video. And what we found out surprised us. All right, well, it's going to be an interesting video. We'll see. Again, link to the video will be in the description down below, guys. So let's take a look at it. कई टाइम से इंडियन स्ट्रीट फूड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, पर अच्छे रीजंस की वजह से नहीं. Yeah, see, these are the type of videos where, I mean, some of these is probably even just not even in India, by the way. Some of these videos could be potentially in Pakistan, could be in Bangladesh, but people online paint it as India, right? से कोई वीडियोस देखे होंगे. Before they could serve me, they had to wash my plate. Bro cleaned my plate with the same water this man was washing his nuts with. तो इंडियन स्ट्रीट फूड की हाइजीन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए I decided to play Hunger Games with my team. So, Hey guys! मैंने 3 टीम्स डिस्पैच करी हमारे देश के 3 शहरों में. उनका मिशन. These are his team. These are the team members. So we have. Does he say their names? Hey guys! मैंने 3 टीम्स डिस्पैच करी हमारे देश के 3 Team A, Team B, Team C. Team C is at a disadvantage. There's just one person in Team C. शहरों में. उनका मिशन बहुत सिंपल है. इंडियन स्ट्रीट फूड के बारे में सच जांचना. टीम ए अंतरा और अमेर बेंगलुरु में है. टीम बी आदि और अद्रजा कोलकाता में. और टीम सी वीना और मोहित दिल्ली में. Oh no, okay, wait. There are 2 people. बेंगलुरु में है. टीम बी आदि और अद्रजा कोलकाता में है. और टीम सी वीना और मोहित दिल्ली में. ईच टीम को एक डिश असाइन करी गई है. शवरमा, पुचका या फिर मोमोज. I thought he was going to fly to all these places himself and eat it, but no, he got other people to go and do his bidding. उनकी जॉब बहुत सिंपल है. फूड कलेक्ट करना है, उसको इंस्पेक्ट और टेस्ट करना है. Taste wise, it was like वेंडर्स को पूछना है कि उनके इंग्रेडिएंट्स आते कहां से हैं. We procure from और फिर सैंपल्स एक लैब में भेजने हैं फूड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए. हम हर स्ट्रीट फूड लोकेशन को रेटिंग देंगे आउट ऑफ 5 3 चीजों के बेसिस पर. खाने का टेस्ट, प्रिपरेशन कितनी साफ थी और जगह कितनी क्लीन. और इस पूरी चीज का ऑब्जेक्टिव बस. I mean, one thing that I gotta point out is like, is it really street food if it's inside of a building? Because then that's not really street food. एक है कि इंडियन स्ट्रीट फूड एक्चुअली कितना Right. गंदा है और इसके सॉल्यूशंस हैं क्या. सो लेट द हंगर गेम्स बिगिन. कारनामा स्टार्ट होता है बेंगलुरु में. टीम एक तमन्ना हल्ली जाती है उधर का शवरमा टेस्ट करने के लिए. तो आज हम लोग बैंगलोर में है और बैंगलोर में कामनहल्ली में है. तो कामनहल्ली का स्पेशलिटी है शॉर्मा. यहाँ पे बहुत सारे शॉर्मा जॉइंट्स है. हमने 3 जगहों को शॉर्टलिस्ट किया है. अल अमन्ना, स्मोकी डॉकी एंड बिग फैट. Big fat roll.
That's what the people call me. इन जगहों को हमने सेलेक्ट किया या तो That's दूसरे what I'm लोगों की called, the big recommendation पर fat या फिर Google roll. reviews के basis पर। पहली जगह है स्मोकी डॉकी। स्मोकी डॉकी मेरे एक्चुअली मैकेनिक ने सजेस्ट किया Smoky था, तो मैं पूछा था Docky. कि कौन सी अच्छी जगह है, तो उसने बोला था कि स्मोकी डॉकी इज गुड। अब खाने को चखने से पहले I want to tell you why I made this video, which is to What is this? What is this? What is this? Beat O curve? understand कि हमारे देश के स्ट्रीट फूड में प्रॉब्लम है क्या। कई बार हम न्यूज़ पढ़ते हैं कि कैसे हार्मफुल केमिकल्स और ऑयल्स की वजह Oh no, I thought it was advertisement. Oh no, it is an advertisement. से हमारे खाने में एक कलर या टेस्ट आ जाता है और ये हार्मफुल केमिकल्स हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं, स्पेशली प्री डायबिटिक और डायबिटिक लोगों के लिए। इंडिया में 10 करोड़ लोग डायबिटिक है और 15 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है। मतलब हर दूसरे घर में किसी न किसी को डायबिटीज का रिस्क है। अगर डायबिटीज के बारे में हमें पहले पता चल जाए, then that's a very good step. This is why I want to recommend and say that B2 का ग्लूकोमीटर is a smart choice. इसका यूज बहुत ही सिंपल है। A glucometer? This is a weird advertisement. This is a weird advertisement. No? Like this is odd. Okay. All right. बस आपको ऐप Sure. डाउनलोड करनी है अपने Android phone में, एक छोटा I सा don't really have anything to say about this, so we are going to skip this. If you want to watch the ad, again, the link to the video will be in the description down below. Yeah, anyways. ताकि you can beat diabetes with ease. Now let's get back to the video. हमने shawarma का ऑर्डर दिया। अभी मैं कुछ ऑर्डर करने जा रही हूँ। See, like this doesn't look like a street food. This looks like a standard restaurant or like I mean, what? Like this is not street food. They have outfits. The people have outfits. There's places to sit. It's in what looks to be like a nice building. This is not street food. I wouldn't say this is street food. Street food to me is like out of a cart or out of like a food truck or something, right? आई थिंक रेगुलर शावरमा ही लेते हैं। हाँ, सो इट विल बी कंसिस्टेंट। सब जगह पे वही ऑर्डर करेंगे जाके। और जब वो ऑर्डर का वेट करते हैं, उन्होंने उस जगह को इन्वेस्टिगेट किया एंड मोस्टली इट वाज वेरी क्लीन। कुकिंग एरिया में साफ सफाई थी, कोई बदबू नहीं आ रही थी और कहीं गंदगी इतनी नजर नहीं आई। अब जगह तो क्लीन थी पर किसी भी वर्कर ने ग्लव्स नहीं पहने। जब हम खाने को अपने हाथों से ट्रांसफर करते हैं, स्पेशली उन जगह जहाँ पसीने हो सकते हैं, तो खाने के साथ साथ हमें एक बैक्टीरिया भी ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे वॉमिटिंग और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इनफैक्ट रिसेंटली बेंगलुरु के कई शवरमा आउटलेट्स पर रेड हुई है, इंक्लूडिंग कई फेमस आउटलेट्स, क्योंकि वो अनहाइजीनिक शवरमास बेच रहे थे। कर्नाटका सरकार ने 17 सैंपल्स कलेक्ट करे 10 डिस्ट्रिक्ट से और 17 में से बस 9 ही साफ और हाइजीनिक निकले। और अनफॉर्चुनेटली Wow, आपको ये that's, प्रॉब्लम that's उसी a जगह bit- that पे is मिल जाए। इसी साल unfortunate. एक स्टडी हुई जहां रिसर्चर्स ने नूडल्स और पानी पूरी को इन्वेस्टिगेट किया और उनके 40% सैंपल्स में उनको वही बैक्टीरिया So I'm assuming is there not like a food safety rating board in India? I'm assuming there is, because like here in the USA, of course, I'm from the USA, so I have to give my own, my own example. But there are the regulations and that, restaurants have to go under, and they have to meet certain criteria. And if they don't meet certain criteria, they get, a lower rating, a lower score. Like they don't get like an A rating or a B rating or, something along those lines. And they have to post that out for the public to see. And if it's too unhygienic, they just get shut down. Is that not a thing in India? I'm sure it is, right? It has to be. मिला जिससे फूड पॉइजनिंग होती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वर्कर्स ग्लव्स नहीं पहनते तो रिस्क क्या है। पर एनीवे, कुछ मिनट बाद हमें खाना मिल गया और अब टाइम था इस खाने को टेस्ट करने का। I'm going to stand firm. This is not street food. नो मेयो वाला ऑर्डर किया है ताकि हमें एक्चुअल मीट का टेस्ट पता चले। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है ना, वो लोग मीट का टेस्ट छुपाने के लिए बहुत सारा मेयो डाल देते हैं। वेरी गुड। चिकन और आई थिंक डज नॉट स्मेल। हमने स्टाफ मेंबर से भी बात करी है जानने के लिए कि भाई ये इंग्रेडिएंट्स आपके आते कहाँ से हैं और ये कितने फ्रेश हैं। हम लोग हर दिन फ्रेश बनाते हैं, डेली चिकन लगाते हैं, वेजिटेबल भी डेली आता है हम लोग के पास और डेली यूज करते हैं। जो बचता भी है थोड़ा बहुत तो हम लोग स्टाफ बहुत सारा वो यूज कर खा लेते हैं। का स्मोकी डॉकी का ये जो आउटलेट है, यहाँ पे ये चिकन कहाँ से आता है? ये मुझे मालूम नहीं है, ऑनर को मालूम है। तो देखो, खाना अच्छा था, ओवरऑल जगह साफ थी और वर्कर्स कोई भी ग्लव्स यूज नहीं हाँ। करते, इसलिए हमने इस जगह को रेटिंग दी 2.5 out of 5। What? Because they didn't wear gloves, they're 2.5 out of 5. I mean, their hands are clean, right? There's a lot of high-end restaurants where the chefs don't wear gloves. That's ridiculous. That's kind of crazy. You look at videos of like Gordon Ramsay, for example. He doesn't wear gloves when he cooks food. नेक्स्ट डेस्टिनेशन है Okay. बिग फैट रोल, जो All कुछ right. ही मीटर दूर Big है। fat roll. That's what they call me. अंदर shawarma भी कुक हो रहा है, तो अंदर जाएंगे, वी
taste this and we'll test this and we'll give you the review. Signature chicken. This is closer to street food than the last one. बस उतना ही. Okay. This one I would say would be closer to street food. Yeah, sure. फ्राइज भी है अंदर, फ्राइज भी फ्रेश ही लग रहा है. चिकन मुझे थोड़ा सा अंडर कुक लग रहा है. इधर भी शवरमा Undercooked chicken is not safe. स्मेल थी और ना बेकार टेस्ट. इसके अलावा जगह भी साफ थी. Self-service. What does self-service mean at this point? Like you don't get seated, you have to come up and get it. Is that self-service? In my understanding, self-service is like a buffet. Like you go up and you plate the food yourself. Yeah, which I guess technically you're grabbing the food, right? You order it, they make it, they give it to you. Even this is a stretch for street food. I guess we just have a different understanding. और स्टाफ ग्लव्स भी पहना था, इसलिए हमने इस जगह को रेटिंग दी 4 out of 5. फिर हम पहुंचते हैं अल अमन्ना और इधर हमें शौक मिलने वाला था. तो अब हम That got 4 out of 5? Wait a minute. Hold on. The chicken is a little undercooked. Undercooked chicken is bad. You can die from undercooked chicken. And they gave it 4 out of 5 और स्टाफ ग्लव्स भी पहना था because the staff were wearing gloves. But they gave the last place 2.5 out of 5 because the staff weren't wearing gloves. Okay. 4 out All of right. 5. All फिर right. हम पहुंचते Okay. हैं अल अमन्ना और इधर हमें शौक मिलने वाला था. तो अब हम आ चुके हैं. इसका नाम है This is not street food. This is straight up, this is just a restaurant. This is like a fast food restaurant. This is not street food. ना. इस जगह को 24,000 रिव्यूज मिले थे विद एन एवरेज रेटिंग ऑफ 4.2. पर भाई आप जगह तो देखो. एम्बियंस बहुत घटिया था और अंदर बहुत एक ऐसी ऑयली सी स्मेल आ रही थी. जगह में स्मेल है, स्टाफ कोई ग्लव्स नहीं पहन रहा और खाना का ऐसा कलर था जैसे मानो केमिकल कलरिंग कर रखी हो मीट की. और ये फूड कलरिंग अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन है. ऐसा कलर था What? जैसे मानो केमिकल They कलरिंग कर colored रखी it with food coloring. That's weird. Chemical coloring. हो. और ये फूड कलरिंग अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन है हमारे देश में. इनफैक्ट गोभी मंचूरियन जो आपको हर जगह मिल जाएगा उस So this is more close to street फूड food. कलरिंग अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कॉमन है हमारे देश में. इनफैक्ट This is the closest, because look, they're literally out on the street. They're at a cart. There's a propane tank, right? This is street food. What he's shown so far has not been street food. गोभी मंचूरियन जो आपको हर जगह मिल जाएगा उसमें आपको ये रेड कलर मिलेगा. पर आपको पता है ये रेड कलर आता कहाँ से है? एक केमिकल डाई से. इस केमिकल डाई का नाम है रोडमीन बी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज आता है. आप खुद इमेजिन करो Yeah. कि एक ऐसा Recently, I mean, a lot of these dyes are actually banned in Europe because they do lead to a lot of health issues, health complications. And recently here in the U.S., a lot of these dyes are being banned as well. They weren't banned before, but they are in the process of being banned. केमिकल जो आपके कपड़ों को डाई करता है वो आपको अपने खाने में भी मिल जाएगा, जैसे गोभी मंचूरियन में. इनफैक्ट पिछले साल कर्नाटका सरकार की खुद की रिपोर्ट ने कहा कि 62% गोभी मंचूरियन सैंपल्स में रोडमीन बी मिला. डॉक्टर शालिनी जोशी जो इंटरनल मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन की एडिशनल डायरेक्टर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो कहती हैं कि ऐसी डाइज की वजह से लिवर कैंसर तक हो सकता है. अब आप बोलोगे कि वेंडर्स को फूड कलरिंग करनी भी है तो ऐसे कई केमिकल्स वो यूज कर सकते हैं जो सेफ होते हैं, पर वो करते क्यों नहीं है? पैसा बाबू भैया, पैसा. एक छोटी सी 15 मिलीलीटर की बोतल की कॉस्ट 150 रुपए है, जबकि रोडमिन बी इज मच चीपर. 1 किलो आपको बस 1000 रुपए में मिल जाएगा, यानी कि 10 गुना सस्ता. इसलिए कई वेंडर्स इसको यूज करते हैं. अब दूसरे देशों की बात कर लेते हैं. कैलिफोर्निया में अगर किसी भी प्रोडक्ट में रोडमिन बी है तो उधर एक वार्निंग का लेबल होता है. हमारे देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप ऐसे केमिकल्स नहीं यूज कर सकते. पर किताब में It's weird he uses California as an example. He could have used like all of Europe. रूल लिखना अलग है और इसकी इन्फोर्समेंट करना बहुत अलग है. इस कलरिंग के बावजूद हमें और अंतरा ने ये But again, though, this is not a street food restaurant. खाना टेस्ट जरूर किया. बहुत बड़ा है भाई. ये तो जंबो का भी बाप है. Jumbo, that looks small. I could eat like 4 or 5 of those. What is this guy on about? But I people do call me the big fat roll, so. सरप्राइजिंग चीज है कि जगह में गंदगी है, खाना टेस्ट अच्छा नहीं करता, मुझे नहीं पसंद आया. पर सबसे ज्यादा भीड़ है इस आउटलेट में. अब ऐसा क्यों है? इसके लिए उन्होंने एक यंग आदमी को पकड़ा. आप मुझे बताओ कि आपने बोला हमें कि आप यहाँ पे बहुत बार आते हो, तो आप यहाँ पे कितना बार आए हो और क्यों इतना बार आप इधर आते हो? मैं इधर 20 बार आया हूँ. ये इधर फूड बहुत अच्छा है. इधर क्वांटिटी भी बहुत मिलता है और
People go for the quantity. All right, so that's the thing. They see it as a better value for the money. टेस्ट भी बहुत अच्छा है. तो बेसिकली लोग इधर जाते हैं फॉर ROI, वैल्यू फॉर मनी. सस्ते में अच्छा खाना मिल जाता है. व्हाट पीपल डोंट रियलाइज इज दैट कि अगर आपके खाने में केमिकल है तो चाहे अभी सस्ता हो जाए पर हो सकता है कि हॉस्पिटल का बिल भरना पड़े. उसका क्या? दिस इज व्हाई दिस प्लेस Well, गॉट I mean, I wouldn't. I mean, don't say. I mean, allegedly. अब 1 out of 5 रेटिंग. टेस्ट करने के बाद अब हम इन सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और एक लैब में भेजते हैं. अब बेंगलुरु का शवरमा तो हमने टेस्ट कर दिया. अब टीम बी जाती है कोलकाता के पुचकास टेस्ट करने के लिए. Oh, when do we get to see? Do we get the test at the end? Hi guys. So, Hello, guys. अभी हम लोग आए हैं कोलकाता में साधन एवेन्यू टू टेस्ट पुचका. Puchka. All right. भैया कितना दिन हो गया बैठ गए यहाँ पे? 25 साल हो गया 25. So this is street food. This is street food. They actually went and got street food. बैठो 100% बैठो. कोलकाता वही जगह है जहां से आपको ये वायरल वीडियो देखने को मिलेगा. आपका एक खाने का. कोलकाता में हम 3 अलग पुचका वेंडर्स के पास गए. अभी हमारा गोल है कि हम 2 स्ट्रीट वेंडर से पुचका खाएंगे और टेस्ट करेंगे और एक एस्टैब्लिश वेंडर से भी करेंगे. पहली जगह है कोलकाता के सदर्न एवेन्यू में एक स्ट्रीट वेंडर जो एक रेसिडेंशियल और बिजी एरिया है. This is street food. When I think street food, I think of this. This is 100% street food, man. अब पहली नजर में ये स्टॉल आपको साफ सुथरा ही दिखेगा. ना कोई मेजर ड्रेनेज का इशू है और ना मक्खियां हैं. लेकिन कोई भी वेंडर ग्लव्स या दूसरा इक्विपमेंट नहीं पहनता. इवन दो सेफ्टी इंसिडेंट्स एक्चुअली बहुत कॉमन. इसी साल अप्रैल में 31 स्टूडेंट्स हॉस्पिटलाइज हो गए थे पानी पूरी खाने के बाद. मई में Wow. करीब 100 बच्चे बीमार पड़ गए मध्य प्रदेश में. और आंध्र प्रदेश में 2 लड़कों की मृत्यु हो गई फूड पॉइजनिंग की वजह से. That is pretty bad. I mean, touching and handling food with the hand is fine as long as you're able to keep your hands clean. There should be greater measures and greater enforcement to keep up the hygiene and keep your hands clean, right? Like that's probably going to be the biggest issue. बैक्टीरिया है जो गंदे खाने में पाया जाता है. अब ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन्स में नेचुरली होता है और ये बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन्स में हमें नुकसान नहीं करता. प्रॉब्लम तब आती है जब हम ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी के बाहर से लेते हैं गंदे खाने के जरिए. ये हो सकता है गंदे हाथों की वजह से, जब सब्जियां धुली हुई नहीं होती, That's पानी what I'm saying. It's all about keeping your hands clean, keeping your product साफ नहीं clean. होता, या फिर लोग टॉयलेट जाते हैं और फिर अपना हाथ साफ नहीं करते. और भैया इस चीज की टेंशन That's gross. हमारे पुचके वाले को बिल्कुल नहीं है. और भाई ये स्टॉल भी बहुत पॉपुलर है. जो भी है सब घर पे बनाते हैं आप. आपका पानी कहाँ से? ये तो आधी का टाइम लगेगा. अच्छा टाइम कॉल का पानी है. अब जरूर उन्होंने ग्लव्स यूज नहीं करे पर इसके अलावा विजुअली मोस्टली जगह क्लीन थी और पुचका या फिर गोलगप्पे का टेस्ट भी अच्छा था. It was actually quite good जैसे normally होता है. I Standard mean, Kolkata it's like deep fried, right? Of course, it's going to be good. Oh, anything deep fried is good. क्वालिटी. Yeah. It was good. ओवरऑल इस जगह को हमने रेटिंग दी 2.5. 2.5 because he doesn't wear gloves. अगली जगह हम गए जहाँ पुचकाज आपको एयर कंडीशन दुकान में मिले. Mineral water, premium oil. हाइजीनिक. पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी स्टाफ हमसे बात करने को राजी नहीं था और हमें रिकॉर्ड करने की परमिशन भी नहीं मिली. हम I लोग mean, that's usually the case for most places, no? को unfortunately shoot करने नहीं दिया. They had some rules probably, तो we just bought the packet. हमें इस जगह से 2 सीख मिली. पहली जगह तो साफ सुथरी दिखी और वर्कर्स ने हेयर कैप और ग्लव्स भी पहने थे. हाइजीनिक के मामले में I feel it was better. वो लोग हेयर कैप पहने थे, ग्लव्स पहने थे. जो यूटेंसिल्स थे वो भी क्लीन ही लगे थे. हाँ. पर जगह क्लीन थी पर मेरी टीम को टेस्ट पसंद नहीं आया. स्टफिंग बहुत कम है, सिर्फ पुचका ही आ रहा है मुंह में. स्टफिंग तो उतना चटपटा नहीं है जितना होना चाहिए था. You know what? That's them hands. They add the flavor. और पानी भी टेस्टी नहीं है. सो अभी समझ में आ रहा है कि no. क्यों ऑल टुगेदर अंडरवेलमिंग लग रहा था. तो ओवरऑल रेटिंग हमने दी 2.5. फिर हम आखिरी दुकान पे गए जो पुचका बेच रही है. Okay. तो हम बाजार एरिया के एक पुचका वाले Wait, so they get 2.5 for bad taste, and the other person got 2.5 for not wearing gloves. This rating system, it's a little sus. The rating system, in my personal opinion, is a little sus, guys. से उनसे आज खा के देखेंगे और टेस्ट भी करेंगे और सैंपल भी भेजेंगे. अब इधर भी वर्कर्स ने ना ग्लव्स पहने हुए ना हेयर कैप. पर भीड़ तो बहुत है. जो प्रोसेस है वो ओवरऑल हाइजीनिक तो लगा. ये बना लेते हैं घर में, खरीदने से नहीं आता टेस्ट. खरीदने का माल दूसरा होता, बासी रहता, टटका नहीं रहता. मिलता है मुदी खाना दुकान में मिल जाता है. चक्की दुकान आटा जो है वहाँ मिल जाता है. इंग्रेडिएंट्स लोकली सोर्स्ड है और पानी घर के RO डिस्पेंसर से यूज किया जा रहा है. तो पानी हम लोग But he's still going to give this place a 2.5 because he's not wearing gloves. घर में वो जो क्या बोलते हैं ना, आरो वाटर है ना, उसमें से निकाल के लाते हैं. हमने रेटिंग दी 3.5. Huh?
और फिर इन Alright, तीनों जगह के okay. सैंपल्स लैब Alright, टेस्टिंग के लिए sure. तैयार कर दिए। बेंगलुरु और कोलकाता के बाद अब बारी थी दिल्ली के मोमोज All की। right, Delhi's moment, time to shine. What did wait? कितने मोमोज बेचते हो? Momos. So those are momos, huh? आते हैं लेकिन इधर Looks like what like dumplings, like a gyoza or something, right? विश्वास नहीं है मतलब Tell me if it feels like real chicken. What? Wait, what did I miss there? बारी थी दिल्ली के मोमोज की। एक दिन में आप कितने मोमोज बेचते हो? 4,000 प्लेट. 4,000, wow. विश्वास नहीं है मतलब Tell me if it feels like real chicken. Huh. All right, okay. They've दिल्ली intrigued की me. KFC में वीना और I'm मोमोज ready to see. टेस्ट कर रहे हैं। मैं दिल्ली के सबसे फेमस मोमो आउटलेट डोलमा आंटी के सामने खड़ी हूँ। सबसे पहले वो जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट वायरल मोमो प्लेसेस में। हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। This is street food. I would say this is like kind of looks like, you know, almost like a food truck. Unless it's like a full-on building. I don't know. You know what? Maybe it's just a cultural or country difference. खाकर भी और लोगों से भी पूछेंगे। वो ऑर्डर करते हैं चिकन स्टीम मोमोज। It looks like it's set up in like a tin. वो एम्प्लॉय से बात करते हैं कि भैया इंग्रेडिएंट्स कितने फ्रेश हैं। तो फ्रेश ही होगा मैडम, हमारा सामान बचता ही नहीं है, हमारा चीज अच्छा है तभी तो आ रहा है ना मैडम। अब जगह तो साफ सुथरी लगती है, पर पास में खड़ा हुआ एक कपल उनको बोलता है मेरे को तो अनहेल्दी लगते हैं वैसे तो कि उन्होंने वेज मोमोज ही खाए क्योंकि उनको पता नहीं है मीट कैसी होगी। आते हैं लेकिन इधर का विश्वास नहीं है मतलब I mean, if you don't trust the quality of a certain product at a restaurant, why go there for a different product? And like, why even go there at all? That seems counterproductive. Because you're still, you know, giving them business, even though you say you don't trust a product that they sell. और वो गलत भी नहीं है। Weird. क्योंकि इंडिया का स्ट्रीट फूड इतना साफ नहीं माना जाता। पिछले साल एक 19 साल का लड़का अपने अंकल के साथ मुंबई के ट्रॉम्बे इलाके में शवरमा खाने गया था। खाकर वो दोनों घर गए और जैसे ही वो लड़का घर पहुंचा उसका पेट दर्द करने लग गया और उल्टी आने लगी। फैमिली उसको एक म्यूनिसिपल हॉस्पिटल लेकर गई, पर हेल्थ में कोई बदलाव नहीं आया। कुछ दवाई दी गई और फिर उसको घर भेज दिया गया। जब हेल्थ सुधरी नहीं, वापस उसको अस्पताल में भर्ती किया गया और अगले दिन उसकी मृत्यु। Wow, what the heck? मोस्ट लाइकली डेथ हुई Salmonella. की वजह से। Yeah, I mean that's what I said. The other one where you said the chicken was undercooked, you could have got salmonella from that, right? बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिससे पेट में दर्द, बुखार, डायरिया और मृत्यु भी हो सकती है जब मीट ढंग से पकाई नहीं जाती। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है। Breaking news coming in from Tamil Nadu, where 3 children have died of food poisoning. That's Lack of terrible. cleanliness That's almost a sad. feature. Whenever a child dies, it's truly sad. कुछ महीने पहले ऐसे अनहाइजीनिक मोमोज के वीडियोस वायरल Oh my god. ऊपर भैया आ लो ओ माय गॉड आ देखो जी पनीर आ देखो Okay, this is bad. पर ये गलती बस रेस्टोरेंट ओनर्स की भी नहीं है, ये समझ अभी कई कस्टमर्स में भी नहीं। आपको टेंशन होता है हाइजीन के मामले में कि फ्रेश है नहीं आप यूर फुल्ली की स्ट्रीट फूड Yes. आप कभी क्वेश्चन भी नहीं करते? No, I'm not question because somebody suggest to me and I will really like it because मैंने काफी नाम सुना है यहाँ का, तो I will enjoy it. फाइनली ऑर्डर आता है और अब टाइम है मोमोज को टेस्ट करने का। फर्स्ट इंप्रेशन में तो मोमोज साफ सुथरे लगते हैं, It is given in a clean plate. The presentation is very, nice. पर हर बार की तरह इधर भी स्टाफ ने ग्लव्स या पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना। वीना ने जब मीट टेस्ट करी And tell me if it feels like real chicken. It does. टेस्ट और स्मेल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ओवरऑल हमने इस जगह को दिए 3 out of 5। Wait, why did they get 3 out of 5? But the other places only got 2 out of 5. Okay. All right. जगह के मोमोज चखने के बाद हम स्ट्रीट स्टॉल्स पर गए। अभी हम एक और जगह ढूंढ रहे हैं जो That's मतलब street बहुत food. popular That's जगह भी ना street हो। जो food. आदमी मोमोज बेच रहा था उन्होंने बताया कि ये मोमोज फैक्ट्री में बनते हैं, सप्लाई में भी जाते हैं ना अच्छा सप्लाई फैक्ट्री है मोमोज का और फिर आउटलेट में बेचे जाते हैं। कितना प्लेट? 3500 4,000 प्लेट Wow. उन्होंने भी हमें बताया कि हर दिन माल फ्रेश बनता है। नहीं क्योंकि कीमत सुबह सुबह आता है ना वो भी और पूरा ताज़ा ताज़ा आता है सुबह सुबह इसलिए आउट का अभी तक नहीं आया अच्छा खुद खाते हैं ना इसलिए अच्छा आप भी खाते हैं ये? पर ना ये महाशय और ना वो आदमी जो डोलमा आंटी के स्टोर में थे हमें ये बता पाए कि मीट कहाँ से आती है। अब किसी ने कोई प्रोटेक्टिव गियर तो नहीं पहन रखा, पर स्टॉल साफ सुथरा लगा, तो रेटिंग मिल जाती है इसको 3.5 out of 5। अब था लास्ट मोमो चखने का और उसके बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है लैब रिजल्ट्स। Wait, पता कहाँ है ये? he didn't. इस They आउटलेट didn't show the meeting उनके yet. मोमोज चिराग दिल्ली के फैसिलिटी में The rating system is sus, guys. I'm as someone that partakes in rating systems in other products and in food, and I've watched many a food show.
The rating system is a little sus. It's a bit sussy-wussy. बनते हैं और फिर स्टॉल में बेचे जाते हैं। आपका एक दिन में खर्च हो जाता है कीमा जो आप बनाते हैं, जो भी मोमोज बनता है, खर्च हो जाता है। जगह साफ सुथरी लगी पर ग्लव्स और मास्क को भूल ही जाओ, इसलिए हमने दिया इसको भी 3.5। फिर इन तीनों जगह के सैंपल्स लिए और लैब की टेस्टिंग में। Wait, see, the rating system's sus. थैंक यू। सो अभी हम लोग कुरियर कर लेंगे यूरेका लैब में। पहला बैच बेंगलुरु से था, 3 फेमस शवरमा जगहों से। अब कुछ जगह बड़ी गंदी जरूर लग रही थी, पर जब लैब रिजल्ट्स आए हम सरप्राइज और रिलीव्ड हो गए क्योंकि किसी भी सैंपल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंक्लूडिंग ये सैंपल। Okay, जिसका good. टेस्ट बहुत ही See? अजीब। Again, like as long as the food is cooked properly and as long as the staff is, washing their hands before cooking, then you shouldn't have these issues. As long as, like... हमने लैब में 7 बैक्टीरिया के लिए टेस्ट किया था, इंक्लूडिंग डेंजरस जैसे शिगेला और साल्मोनेला के लिए, और हमने फूड कलर्स और केमिकल्स के लिए भी टेस्ट करवाया। पर बेंगलुरु के इन 3 शवरमा आउटलेट्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। Okay. पर कोलकाता में पुचके के साथ ऐसा रिजल्ट नहीं है। Wait a minute. Okay, so he was talking about food dyes earlier in the video, right? Like he went on a whole spiel about food dyes specifically at that restaurant there. And then he just said that there were no food dyes? पर बेंगलुरु के इन 3 शवरमा आउटलेट्स में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। Am I... टेस्ट किया था, इंक्लूडिंग डेंजरस जैसे शिगेला और साल्मोनेला के लिए, और हमने फूड कलर्स और केमिकल्स के लिए भी टेस्ट करवाया। पर बेंगलुरु के इन 3 शवरमा आउटलेट्स में We didn't find any problems. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। It was this one, right? Test results below or greater than 10, 100 parts. It's like, what, 10 parts per whatever, 10 parts, 100 parts per whatever. So, I don't know. All right. I don't पर know. कोलकाता में पुचके के साथ ऐसा रिजल्ट नहीं है। अब बैक्टीरिया तो प्रेजेंट नहीं था, पर एक स्टोर के सैंपल में हमें ई कोलाई मिला। अब आइडियली खाने में किसी भी मात्रा का ई कोलाई नहीं होना चाहिए, पर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कुछ लेवल का ई कोलाई इतना ही खाने में किसी भी Which place was it? प्रेजेंट नहीं था, पर एक स्टोर के सैंपल में हमें ई कोलाई मिला। अब आइडियली खाने में किसी भी मात्रा का ई कोलाई नहीं होना चाहिए, पर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कुछ लेवल का ई कोलाई इतना हार्मफुल नहीं है, और जो हमें लैब रिजल्ट्स में ई कोलाई मिला वो एक्सेप्टेबल लेवल से कम ही था। तो इस प्रॉब्लम के अलावा हमें और कोई केमिकल्स वगैरह कुछ नहीं मिले। फाइनली अब बात आती है दिल्ली के मोमोज की, और इधर बाजी पलट गई। तीनों सैंपल्स में हमें स्टाफ मिला। Oh my God, staff? Oh shit. That's bad. Oh, that's real bad. Oh God. ये एक ऐसा जर्म होता है जिससे फूड पॉइजनिंग और डायरिया हो सकता है, और ये I wonder, the guy, the guy at the second stall said that they get them from the street carts get them from like a factory or something, right? So I wonder if they all get it from, all 3 of them get it from the same place. usually That would, would support, hey, having staff in every single one पाया of them. जाता है जब लोग गंदे हाथों से खाने को टच करते हैं। तो मेनली 3 पॉसिबिलिटीज है कि मोमो स्टॉल में लोगों के हाथ गंदे थे जिस वजह से इसमें जर्म्स आ गए। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरी टीम मेंबर ने गंदे हाथों से सैंपल टच किए। True, ये unlikely true. है, क्योंकि उन्होंने तो सैंपल भेजने से पहले छुआ भी नहीं। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि ये मोमोज खुली हवा में कई समय से रख दिए गए थे जिस वजह से बैक्टीरियल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। तो अब इस लैब इन्वेस्टिगेशन से हमें मिला क्या? मोस्टली हमें ये मिला कि स्ट्रीट फूड सेफ है। ये एक्चुअली ट्रू है या नहीं? अब एक पॉसिबिलिटी है कि Well, you didn't really go to, like, some of these places weren't even street food, but go on. एक्चुअली ये खाना गंदा नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन में एक सैंपल बायस था। हम शायद उन्हीं जगहों में गए जहां मोस्टली साफ सफाई है। पर ये भी बात सोचने की है कि ये वीडियोस सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है। ये है क्या, ये तो बता दो। ये बस पेस्ट मसाला है सर। तो भाई यहाँ इनके पानी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो रही है। जो पानी ये पिलाते हैं गोलगप्पे में, वो पानी बनने जा रहा है। Before they could serve me, they had to wash my plate. Bro cleaned my plate with the same water this man was washing his nuts with. और जब हम ऐसे वीडियोस देखते हैं हमें लगता है कि इन लोगों को साफ सफाई के बारे में कोई आइडिया नहीं। पर इस मामले में जब रिसर्च हुई है हमें पता चला कि एक्चुअली लोगों को नॉलेज जरूर है। जैसे दिल्ली और भुवनेश्वर में एक्सटेंसिव स्टडी हुई जहां पता लगा कि आधे से ज्यादा लोगों को साफ सफाई की जानकारी है और कई लोग ग्लव्स जैसे इक्विपमेंट यूज भी करते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वेंडर्स को साफ सफाई के बारे में नहीं पता, प्रॉब्लम ये है कि वो करना नहीं चाहते, मेनली क्योंकि रेगुलेशंस इतनी ढीली है। एक्चुअली
weak regulations, and again, I think we see a large amount of this because people seek it out, right? I think that's what the main thing is. Sure, yeah, these people, you know, there's going to be dirty restaurants all over the world, okay? There's going to be dirty restaurants everywhere you go. There's going to be lazy people that don't want to clean, that don't want to do things properly. But when you see these videos, and these videos keep popping up over and over and over again, it's because the people making the videos go and seek out these places so they can record it and they can get views. That's why we see such a big influx of them, you know, out on the internet. रेगुलेशन नहीं, एनफोर्समेंट इतनी ढीली है। FSSAI के रूल्स के हिसाब से हर फूड बिजनेस को रजिस्टर करना पड़ता है और हाइजीन रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, पर बस 33% स्ट्रीट वेंडर्स ही एक्चुअली रजिस्टर्ड है। दूसरों के साथ क्या हो रहा है हमें कोई आइडिया नहीं है। अब इस चीज़ की जिम्मेदारी होती है फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की। पर गेस करो 1 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पूरे देश में कितने ऑफिसर्स हैं? करीब 2,500, यानी कि हर 4,000 वेंडर्स के लिए एक ऑफिसर। ये क्या ही मॉनिटर कर पाएंगे? अब ऑफिसर्स ना होने का क्या अंजाम होता है? ये है सिंगापुर का स्ट्रीट फूड। और ये I mean, there's a lot of people looking for jobs. All I'm saying, if there's one person for every 4,000 vendors, there's a lot of people, a lot of young people looking for jobs right now. This is a job that many people can take up. I mean, I'm just saying, guys, open up. The government should, you know, open up and allow for more of these positions so people can apply and get more jobs. And, you know, that builds up the economy as well, right? 4,000 वेंडर्स के लिए एक ऑफिसर, ये क्या ही मॉनिटर कर पाएंगे? अब ऑफिसर्स ना होने का क्या अंजाम होता है? ये है सिंगापुर का स्ट्रीट फूड और ये है इंडिया का स्ट्रीट फूड। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड है तो बहुत पॉपुलर, पर उनके लिए ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ऐसे स्टॉल्स ओपन और क्राउडेड एरियाज में है जहाँ धूल मिट्टी भी उड़ती है और साफ पानी और डस्टबिन भी नहीं होते, और कई बार वो गंदा पानी यूज करते हैं बर्तन धोने के लिए। कई वेंडर्स के आसपास टॉयलेट्स भी नहीं होते, जिसका मतलब है कि वो टॉयलेट करने के बाद हाथ भी साफ नहीं करते, तो उनके हाथ में जो गंदगी है वो कहाँ जाएगी? और क्योंकि ढंग की रेगुलेशन नहीं है, इस वजह से स्ट्रीट वेंडर्स को भी लगता है कि वो कहीं भी स्टॉल लगा सकते हैं, सड़क के बीच में, फुटपाथ पर, या फिर किसी बिल्डिंग के सामने, चाहे उधर जगह और साफ पानी हो या फिर ना। इसके सोल्यूशन हम सिंगापुर से सीख सकते हैं। सिंगापुर में भी एक टाइम स्ट्रीट फूड में ऐसी ही प्रॉब्लम्स होती थी, जिसके बाद सरकार ने हॉकर सेंटर्स बनाए। ये मानो फूड कोर्ट्स की तरह है, जहाँ डेडिकेटेड। Yeah, these places are pretty popular. This is very popular here in the U.S. as well. I know he talked about California earlier, but yeah, there's a lot of like food markets like this in California for these like smaller local, you know, like food trucks or, you know, just smaller food businesses to go and set up shop. स्टॉल्स बनाए गए हैं स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए। इधर साफ पानी भी है और साफ सफाई करने का सिस्टम भी है। इसके बाद उधर एक लाइसेंसिंग सिस्टम भी है, जिस वजह से हर स्टॉल को A, B, C या फिर D रेटिंग दी जाती है। This is how it is here in the US. We get the rating. There's also a numerical rating as well. A मतलब सबसे साफ और D मतलब सबसे गंदा। इसका मतलब है कि अगर कोई भी कस्टमर स्ट्रीट वेंडर के सामने खड़ा है, उसको पता है कि इधर कितनी साफ सफाई है। इस वजह से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हर वेंडर चाहता है कि उनका स्टॉल साफ हो। अब हमारी इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट फूड सैंपल्स ने टेस्ट को पास कर दिया, पर अगर ऐसी जगह लैब में साफ निकले भी, नो वन शुड बी सब्जेक्टेड टू एन एनवायरनमेंट जहाँ लोग पसीने में काम कर रहे हो, पर उन्होंने हाथ में ना ग्लव्स पहने और ना सर पे कोई क्या। डर्टी स्ट्रीट फूड लाइक दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। Interesting. Well, the video was fun to watch. The scoring system was a little sus. I'm just going to say that's probably because, you know, it's his first time doing a video like this, I'm assuming. But, you know, a lot of things I said at the very beginning kind of, you know, rang true at the end. Again, it's the people seeking out these viral potential videos, viral potential street foods that are bad, and they record it and put it out. I think that's the bigger problem. I'll be honest with you. I think it's a small sample that's being blown up to be, oh, this is actually what's happening all over the place, when it's actually not. My only complaint about the video is they went to like sit down restaurants and like fast food places. They didn't go to street food. Like hardly any of them went to street food. Anyways, guys, link to the video will be in the description down below. Please take a look at it. We're going to read some of the comments now. I wouldn't qualify this as street food. These are actual joint branches with an accountable parent organization. I was expecting standalone stalls and the like. Yeah, that's what I said. That's what I'm saying, brother. Yeah. Hygiene is not optional. It's basic. All 3 teams went there to investigate, but ended up having a date.
To be honest, I'd rather eat at a place whose staff washes their hand regularly, because that's what the point of wearing gloves if they don't change it regularly. True, true. Gloves, if you're wearing the same set of gloves, that can actually, that spreads, bacteria and nastiness just as well as not washing your hands. If the person washes their hands often, then you don't have to worry. So now hygiene has also become a luxury after clean air and water. Gloves doesn't mean it's clean. I have seen cafe workers go to washrooms wearing gloves and come out and prepare orders without changing them. True. So true. And I strongly believe they use the same gloves for days or weeks until it wears out. To save money? Maybe, yeah. I highly doubt that they're changing the gloves, so I'm not expecting anyway. This was not street food in Bangalore. These are proper shops, and some are even branches of parent franchises. You should have tested and tasted the regular standalone stalls on the side of the roads. That's what I'm saying. How does India fail in every metric, whether it's air quality, civic sense, enforcement, etc.? It's appalling. Well, that's a bit extreme to say. Investigating street food, but they went to a food corner at 3:40. So it'll be right. Okay. Forget street food, even healthy options such as paneer, eggs, and milk are not safe in this country. What's wrong with paneer, eggs, and milk? Bro changes his thumbnails a lot, but why did he break his... I don't know what that is. So when it comes to like thumbnails, you can actually set 3 thumbnails in YouTube now. You can set up 3 thumbnails in YouTube, and it cycles between them and for like 2 weeks, and it does a test to see, which thumbnail gets clicked on the most, and then thumbnail that gets clicked on the most actually gets pushed and becomes the main thumbnail for the video going forward. Nothing will change in Indian street food ever, because it's all about civic sense, discipline, morality. Back in 2016, my sister ate from the famous 10 rupee burger in Delhi. She got hospitalized for almost 2 months. Oh my God, that's insane. It's good you went to see a restaurant type outlets, but it's actually street food isn't there. Okay, so yeah, I mean, the comments seem to agree with me. They didn't go to street food. Crazy. Still pretty good though. Still all right. I like the video still. So link to the videos in the description down below. Go take a look at it, guys. With that, I'm out of here. Take care. Goodbye.